Hi Jyoti, am I audible? Yes, yes, you are. Perfect, perfect. So Can you hear me clearly? yes, I can hear you. Okay, okay, okay. Great, perfect. So thank you for coming and joining this session. So Yeah, thank you so much for inviting me for this session. you're welcome. Yes, Jyoti. So where are you from? I'm from Gurgaon, India. Gurgaon. Okay, great. Yes. So where are you studying? Like, are you still studying or you have completed your studies? No, no, I already finished my studies, so still I'm working. So from past 1.5 year, I'm working as analytical chemist. Wow, great. So what this profile is all about? All about chemistry, All about chem. research, developing new methods, testing, method validation, method development. So all these things. So it's a quite different field because not all international students choose chemistry or science courses for their studies like international. So Mhm. yeah, that is a quite different course. Most of the people choose management, engineering, and IT for their courses. So how difficult was it for you to find this job? Frankly The speaking, difficult. I was lucky to get it in within 2 months, I think, after I graduated. Oh, nice. Yeah. Great. So I only applied for 5 jobs. I got Mhm. interview for 3 jobs. Mhm. I almost cleared the interview for 3 jobs, but I already signed the contract for this job. तो Mhm. मेरे को फिर बोला मैंने ज्वाइन नहीं करा दूसरी कंपनीज. So it was good. बहुत बढ़िया। तो आप कब गए थे ऑस्ट्रेलिया? December 2021 after COVID. आफ्टर कोविड। तो आपको डर नहीं लगा कोविड में जाते हुए कि अभी सब इतना डरे हुए थे, तो आप में इतनी हिम्मत कैसे आई? तो क्या हुआ मेरा 1 ईयर ऑनलाइन गया है. तो हम्म। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. मुझे ऐसा था कि 1 साल यहाँ से पढ़ रही हूँ, फीस जा रही है, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ. तो हम्म। जब पता चला कि बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, ऑन द सेम डे आई बुक द फ्लाइट्स हम्म। आफ्टर अ मंथ एंड देन या यहाँ पे फिर लैंड हो गई. I was परफेक्ट। very excited to actually come to Australia. I was really, really excited. Even in my family as well, everyone was so excited to send me back. You know, send me to Australia. They were like, "Okay, borders कब खुल रहे? तो जा जल्दी यहाँ से." अमेजिंग, अमेजिंग। तो आपने इंडिया में क्या पढ़ाई करी थी? सो इंडिया में मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया था केमिस्ट्री में. बैचलर्स ऑफ साइंस कौन सी यूनिवर्सिटी से? नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, MDU. विच इज इन हरियाणा, रोहतक। यस यस, हरियाणा रोहतक, राइट. ओके, परफेक्ट। तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का क्यों लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? उसके पीछे एक लंबी स्टोरी एक्चुअली. सो अभी आई वॉज बहुत वेरी टाइम है गुड. अपने पास। अब आराम से I तसल्ली। was very हाँ। yes, yes, I was very good like in studies. तो हाँ, हाँ। बोलते हैं ना ब्राइट स्टूडेंट, तो हम्म। हमेशा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी थी मैं. जी। तो मेरा ऐसा एक ड्रीम नहीं था, मैं 2-3 प्लान्स लेके चलती थी मैं ऐसा. हम्म। सो when I passed my 10th standard, my parents want me to be an IAS ऑफिसर. वाह। तो उन्होंने बोला कि IAS कर, तू होशियार भी है तो कर लेगी डेफिनेटली. आई हम्म। क्लियर प्रीलिम्स एक्चुअली. तो अरे वाह। हाँ, तो मैंने यूपीएससी में CDS क्लियर करा है, प्रीलिम्स क्लियर करा है. मेरे बहुत सारे बैंकिंग के पेपर भी क्लियर है. अच्छा। बट शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं था बिकॉज आई वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री फील्ड. हम्म। और मैंने बैचलर्स करा तो आई हैव अ गैप ऑफ 2 years बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. हम्म। आई डोंट नो, आई डेंट फील इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा 1 साल में एक बार पेपर आता है एंड देन इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, इफ यू कैन नॉट क्लियर मेन्स, अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर. हम्म। So I was like, no, I think UPSC is not made for me. I need to do something else. Then I हम्म। started looking for master's courses in India. हम्म। But all the masters in my field, like masters in chemistry, they were very basic. Without any research component. और अगर हम्म। रिसर्च करना था तो उसके लिए आपको PhD करनी पड़ती है. तो करेक्ट। वापस करने के बाद फिर आपको PhD जाना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक, नो, आई वांटेड टू एक्सप्लोर research component in my master's degree. So I was like, I was bright and then everything was good. So I was like, okay, why not to study abroad? हम्म। So I started looking for options. Canada was never in my list actually. क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस है. I wanted to go to a country जहाँ पे कम इंडियंस हो. यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे इंडियंस है हाँ। और थोड़ी डिफरेंट हो ऐसा. एंड हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एवरीथिंग लाइक सब कुछ अच्छा हो. इनफैक्ट पे भी अच्छा हो. सो आई हम्म। एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग. देन मैंने ऑस्ट्रेलिया फाइनलाइज करा. हम्म। एंड after finalizing Australia, I selected some courses
like I was just looking for courses जिसमें research component हुआ, and then I found one course, and I was like, okay, that is what I really wanted to do. I just checked the course, you know, course syllabus. I like the syllabus and it's like, okay, second year is research degree. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च वगैरह में, तो यस ऐसे मैंने फाइनलाइज करा. एंड आई डिडंट इन्फॉर्म माय फादर, my family, until I got the offer from university, until I got like, you know, I cleared my PT. So जब सब कुछ clear हो गया, offer भी आ गया, only then I informed my father, okay, I'm going to Australia. क्योंकि financial thing के लिए तो वही चीज करेंगे ना. हाँ, ITR और बैंक स्टेटमेंट तो वही देंगे. हाँ हाँ, वो जी. चीज था तो. ओके, परफेक्ट. सो आपको हर्डल्स भी आए होंगे इसमें जब आप खुद से ये सारी चीजें कर रहे होगे, तो वो क्या क्या थे? तो जब मैं सेलेक्ट कर रही थी तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है. मुझे एडमिशन प्रोसेस नहीं पता था. इट वाज वेरी कंप्लीटली ना न्यू सेक्शन फॉर मी, मतलब न्यू एरिया कि कैसे पीटीई देना है और आईएलटीएस वगैरह. मैंने पीटीई दिया, वो भी कंपेयर करके बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फिर पढ़ा बहुत बहुत. So I was very good in reading articles and all. So I used to read a lot. So बहुत सारी चीजें पढ़ी, फिर समझ में आया कि पीटी देना चाहिए, आईएलटीएस देना चाहिए, which is like easy. And like easy तो दोनों नहीं है वैसे, लेकिन कंपेयर किया जाए तो पढ़ना तो दोनों में ही पड़ेगा. हाँ, क्योंकि पीटी is all about smart work. PT is all about smart work and then accuracy, how accurate, like, and it about your, you know, computer skills as well. So if you're good in typing, I'm very bad in writing. That's why I didn't choose IELTS. मेरी writing अच्छी नहीं है, तो मैं सोचा कि टाइप तो मैं कर लेती हूँ, तो टाइपिंग थोड़ा ठीक रहेगा. तो देखा मैंने पूरा सिलेबस वगैरह, एंड आई वाज वेरी मच कंफ्यूज कि क्या चीज, मतलब प्रोसेस क्या होता है. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड देन उसके साथ साथ मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, तो जो ब्लॉग्स बनाते हैं बच्चे. तो आई वाज कंफ्यूज कनाडा जाना है कि नहीं जाना है. फिर मैंने देखा कनाडा में नहीं, कनाडा ऑप्शन नहीं है. सो आई वाज प्लानिंग टू मे बी यूके देखा. फिर यूके में देखा कि आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एंड पीआर का सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग था सिस्टम. आई थिंक उस टाइम पे 1 ईयर था पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा. अभी आई थिंक 2 years हो गया है. 2 years है. हाँ, जब मैं सर्च कर रही थी तो उस टाइम पे 1 ईयर था आई थिंक. एंड देन मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया. सो यस, मुझे कोर्स मिला और सब कुछ देखा कि क्या एलिजिबिलिटी है. आई वाज लाइक फिटिंग इनटू ऑल द एलिजिबिलिटी. ओके, आई वाज लाइक आई हैड एवरीथिंग. तो मुझे लगा ठीक है, ये इसमें अप्लाई किया जाता है, इसमें अप्लाई करते हैं. देन आई टुक सम हेल्प फ्रॉम नीरज सर. उनको मैंने बताया, उनके पास मैं गई फाइल लेके, मैंने बोला ये कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी है, मुझे एडमिशन चाहिए, क्या मुझे मिलेगा? तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपने फिर सेलेक्ट करी? कहाँ अप्लाई किया था और कहाँ से आपको ऑफर? मैंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. अच्छा, एक ही में किया था? लाट्रोबी यूनिवर्सिटी. बिकॉज़ द ओनली रीजन इज आई लाइक द कोर्स स्ट्रक्चर. ओके, तो पहले आप प्रिपेयर्ड होके गए थे, रिसर्च करके गए थे अपनी तरफ से पूरा? हाँ, मैंने बहुत रिसर्च करा था जाने से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि बेस्ड ऑन माय मास्टर्स डिग्री आई हैव टू गेट अ जॉब. और जितना ज्यादा स्किल मुझे मेरे मास्टर्स डिग्री में सीखने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे मेरे फील्ड में इंस्ट्रूमेंटेशन पे कमांड आनी बहुत जरूरी है. आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए और उनका ट्रबल शूटिंग आना चाहिए. तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग करा था. आई डोंट वांट टू गो इनटू अ कोर्स वर्क, कंप्लीट कोर्स वर्क, क्योंकि फिर उसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता. तो दैट वाज वन रीजन कि मैंने क्यों वो चूज किया. बाकी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी रैंकिंग में है, लेकिन उसमें कंबाइंड नहीं था, कोर्स वर्क प्लस रिसर्च नहीं था. और उसमें बाकी चीजें भी थी, मतलब उसमें एक्स्ट्रा अननेसेसरली कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मुझे इरेलेवेंट लगे, जो जिससे मुझे कुछ देना नहीं था, तो मुझे पढ़ने नहीं थे. तो इसलिए मैं रिसर्च करा, सारे कोर्सेज देखे, हर एक सब्जेक्ट चेक करा, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेक करा कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है और मुझे उसमें से कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और क्या के बेस्ड पे मैं आगे जॉब कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, और कौन कौन सी फील्ड्स मेरे लिए ओपन होगी, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फॉर जॉब. तो वंस आई डिड ऑल द रिसर्च, आई जस्ट bring my file and they said, okay, can you just like tell me if I'm eligible for the course or not in front of Neeraj sir. तो फिर आपने कौन कौन से फील्ड में, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में ना जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे कोर्सेज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप है कि बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां पे जाएंगे तो उनका अच्छा करियर बन सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? अगर साइंस फील्ड की बात करें ना, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी करी है तो बहुत स्कोप है यहाँ पर.
क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल एज वेल, कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको आता भी है कि नहीं आता है। जी। सिर्फ पास करने से, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको रटाफिकेशन नहीं चाहिए, आपको बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। वो अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशनल बेस्ड पूछते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड पूछते हैं, या आपके स्किल को चेक करते हैं कि आर यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट। तो यहाँ का इंटरव्यू अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे मतलब इंडिया के इंटरव्यू से, तो बहुत डिफरेंट है। इंडिया में पूरा थ्योरी व्योरी पूछते हैं अच्छे से, यहाँ पर वैसा नहीं होता। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स है जैसे CSL, बियरिंग एंड ऑल, उनमें बहुत अच्छे से एंट्री मिल जाती है, मतलब बहुत सारे रोल्स निकलते हैं। और अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो PR वगैरह भी बहुत इजीली मिल जाता है। बाकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी अच्छा है, बट आई थिंक रिसेंटली इट इज आउट फ्रॉम द स्केल ऑक्यूपेशन लिस्ट, आई गेस। आई एम नॉट श्योर। फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी इज गुड। मेरा जो फील्ड है, आई वाजंट श्योर अबाउट इट एक्चुअली। देखा था, it's difficult to get PR in my field, but it's not as difficult. I mean, like if you have points, you will get the PR because skill ये skill shortage में आता है, तो ठीक है। परफेक्ट। वो तो आप साइंस smart फील्ड हो, में वो आप स्मार्ट हो, आप निकाल ही लोगे। जिसने तो बाकी ऑप्शन भी होते हैं इंडिया में, आपको। हाँ, क्या है जिस मैं कह रहा हूँ जिसने इंडिया में UPSC निकाल लिया वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है। मेरे पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं कि इसने कंप्लीट क्यों नहीं करा, छोड़ के वहां चली गई। तो sometimes like something is not made for you, so you have to decide, and very sudden plan करना होता है आपको। हमेशा प्लान भी रेडी करके रखना चाहिए। आप एक ही प्लान पे स्टिक रहोगे एंड देन उसी को स्ट्रेच करते रहोगे, so you will face problem in your life. I'm doing good right now. I'm happy whatever I'm doing. That's the best part. That's the best part. Like we all should strive to be happy. और हर किसी के लिए हर चीज नहीं बनी ना, कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, कि एक मतलब 1000 वैकेंसी के लिए 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। It doesn't make sense. Yes. और ऊपर से I was also planning to do my masters in India. तो मुझे था अगर मास्टर्स करनी है मेरे फील्ड में, तो IIT वगैरह से करनी है। आई ऑल्सो गिव लाइक IIT JAM एग्जाम्स फॉर माई मास्टर्स डिग्री। अच्छा। आई कुडंट क्लियर इट बिकॉज माई मोर फोकस वाज ऑन UPSC। तो और मेरा UPSC में मेंस का सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री था। तो मेरे को ऐसा था कि मैं क्लियर करती हूँ, बट देयर वाज लाइक आपको एक एंट्रेंस देने के लिए 1 साल रुकना पड़ता है। If you clear it, then it's good. If you didn't clear it, then you have to again give it next year. So पूरा 1 साल जाता है। And वो 1 साल लगता है कि बस 1 साल है, बट बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आप कुछ कर नहीं रहे होते हो, आपको फुल टाइम फोकस करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम में। इट इज गुड, लाइक मुझे लगता है कि आई वाज ब्राइट, बट आई डोंट थिंक सो आई वाज ब्राइट इनफ टू क्लियर IIT एग्जाम्स। तो मुझे लगा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, गैप नहीं आना चाहिए। आई वांटेड टू बिल्ड माय करियर एज सून एज पॉसिबल। ऑलरेडी आई वाज डिलेड 2 years, 2 year का गैप था बिकॉज ऑफ माय UPSC स्टडीज। बट ओके, कंप्लीटली फाइन, नाउ आई एम ऑन ट्रैक। परफेक्ट। नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया है। तो अभी आपको कब लग रहा है कि आपकी रेजिडेंसी हो जाएगी वहां पर? तो उसके पीछे का है कि व्हेन आई गॉट द जॉब, मेरा लकीली, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस जॉब इज रियली गुड। वर्क कल्चर इज रियली गुड। मैं बोल सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जॉब के मामले में ना मैं बहुत लकी निकली शायद। और बट हार्डवर्क भी था डेफिनेटली। तो उसके बिना तो होगा ही नहीं ना, उसके वो तो प्रीरिक्विजिट है किसी भी चीज को करने के लिए। यस। तो मैं लकी निकली थी कि मुझे वर्क कल्चर काफी अच्छा मिला। एंड वन मोर थिंग दैट वर्क्स इन माय फेवर इज आई एम वेरी टॉकेटिव। सो आई लाइक टू टॉक विद पीपल, स्ट्रेंजर पीपल। सो मैं शाई नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो डजंट मैटर कि कोई भी अगर सामने खड़ा है तो मैं बात कर लेती हूँ, जाके अप्रोच करती हूँ एंड देन नॉर्मली बात करती हूँ। तो वो मेरे फेवर में काम आया, बिकॉज वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल यू बिल्ड रेफरेंसेस। सो ऐसा नहीं कि अपने साथ वाले बंदों के साथ बात करना है, अपने सीनियर से बात करो या बड़े लोग से बात करो, कॉन्टेक्ट्स बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं रेफरेंसेस निकल ही जाता है। तो अभी बात रही यहाँ पे, तो everything is good. My company, like my general manager, my manager, everyone likes me. They wanted me to stay in this company. They offered me sponsorship. उन्होंने बोला कि we are ready to sponsor you as well. But before going to company sponsorship, I wanted to try by myself because this company को commitment देनी पड़ती है, and then there are other disadvantage of getting सैलरी हाइक फिर लिमिटेड हो जाती है। हाँ, फिर वहीं पर आपको स्टिक करना पड़ेगा काफी दिन तक। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली में
चाहते हैं कि यार कोई ना कहीं से भी स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप कुछ भी इस तरीके से हेल्प मिल जाए, उससे उनकी काफी मदद हो जाती है आगे पीआर में। यस बहुत यस। तो मैंने भी स्टार्ट करी है फाइल, सो आई ऑलरेडी लाइक अप्लाइड फॉर माई स्किल असेसमेंट, इट विल कम, एंड देन पीआर की फाइल में आई एम अप्लाइंग फॉर 190 एंड 491। सो Okay. आई थिंक बाय द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर मेरी फाइल रेडी हो जाएगी और मैं अप्लाई करूंगी। सो आई विल अप्लाई बाय माई सेल्फ, इफ आई गेट इट देन इट्स गुड, अदरवाइज कंपनी तो है। ऑल द बेस्ट फॉर एक दैट। एक चीज में, हाँ या थैंक यू सो हाँ मच, हाँ। एक और चीज मैं बोलती हूँ कि वन ऑफ द अदर रीजन इज बिकॉज आई स्टडीड इन मेलबर्न सिटी, हाँ। हम्म। आई यूज्ड टू लिव देयर, हम्म। और उसके बाद जब मुझे जॉब लगी इट वाज 6 hours ड्राइव फ्रॉम मेलबर्न। हम्म। सो इट्स अ रीजनल इन विक्टोरिया, हाँ। इट्स कॉल्ड पूरा। तो जब मुझे जॉब लगी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका था कि ओ व्हाई आर यू मूविंग देयर, इट्स सो हम्म। फार अवे, यू नो योर फील्ड इज वेरी गुड, योर फील्ड इज नीच फील्ड, सो यू विल गेट अ गुड जॉब हियर। हम्म। बट आई वाज वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि आई गॉट अ जॉब, यू नो माय जॉब वाज लाइक मिड सीनियर लेवल। हाँ। So, after doing master's degree, if you got a job in your हम्म। field, an analytical chemist, and everything was good, other than कि distance बहुत है city से, हम्म। so I didn't listen to them actually. I हम्म। was very, I was very confident कि no, I can move to a regional city, हम्म। and मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ पर, बट आई स्टिल मेड लाइक यू नो टेक अ डिसीजन एंड देन मूव्ड हियर। और रीजनल में ये फायदा होता है कि मोस्ट ऑफ द आपको कंपनीज एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप 491 के लिए जाते हो तो, बट कंपनी वगैरह अगर आप अच्छे हो, रियली आपका काम आता है, तो कंपनी भी स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होती है। सिटीज में बहुत डिफिकल्ट होता है जस्टिफाई करना उनके पास why ऑप्शन ज्यादा होते हैं ना, वहां पर कैंडिडेट ज्यादा हैं, Yes. ऑप्शन ज्यादा हैं, तो वो सोचते हैं कि विदाउट किसी कमिटमेंट के आप किसी भी कैंडिडेट को रख लो। बट इफ समबडी इज हायरिंग यू एट द रिमोट प्लेस, तो उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, तो उनको गुड रिसोर्सेज की बहुत कमी है। Yes, and there is one more thing in company sponsor. Because कंपनी को जस्टिफाई करना होता है टू गवर्नमेंट व्हाई वी नीड एम्प्लॉय। Correct. सो उनको अगर वो बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम रीजनल में काम करते हैं, दे कैन पुट सम पॉइंट्स लाइक स्किल शॉर्टेज इन रीजनल एरियाज, we are not like finding many people with this skill level जो उस बंदे के पास है, मतलब उस पर्सन के पास है, तो वो जस्टिफिकेशन अच्छा होता है, एंड देन स्पॉन्सरशिप स्ट्रॉन्ग, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट द स्पॉन्सरशिप। सिटीज में चांसेस है कि आपका स्पॉन्सरशिप कैंसिल भी हो जाए, बिकॉज यू हैव मोर ऑप्शंस, मतलब Correct. एक जॉब एप्लीकेशन के लिए 100 200 बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। सो स्किल पीपल की तो कमी नहीं है डेफिनेटली सिटी एरियाज में तो। हम्म। Sorry, so it's up to you, like if your plan is to stay in that particular country, like in Australia for longer time, PR का है तो don't think twice while moving to any other place, like or leaving your friends behind, definitely. ट्रू। सो अभी आप जहां पर हो, मतलब द रीजन फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट इज टू मेक द अदर स्टूडेंट्स अवेयर कि वहां पे कल्चर क्या है, किस तरीके से लोग रहते हैं, कितना खर्चा होता है, ऑल दोज थिंग्स। सो अभी एट प्रेजेंट आपका, जैसे अभी तो आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो फुल टाइम Yes. जॉब में जब आप पार्ट टाइम पे थे तब आप अपना खर्चा कैसे मैनेज करते थे और वो कितना होता था, और अभी जब आप फुल टाइम पे हो तो व्हाट इज द चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन अ एवरेज, ऑन अ रफ, कि किस चीज पे कितना कितना खर्चा होता है। सो दिस वुड रियली हेल्प द अदर स्टूडेंट्स प्लान देयर एक्सपेंसेस। Okay. तो जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो आई यूज टू वर्क 3 days ओनली, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट एंड संडे नाइट। अच्छा। ओनली रीजन इज कि पे हाई होता था, हाँ। तो मुझे ऐसा था कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, 20 आवर्स है कितने कंप्लीट करने थे। बट आई थिंक हमारे टाइम पे रूल नहीं था नंबर ऑफ आवर्स का, हाँ। बट अभी वो है कि कोविड के जस्ट बाद में आई थी तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स थे, बट स्टिल आई जस्ट यूज टू डू 3 days, क्योंकि रिसर्च पे फोकस करना था, एंड दैट वाज द मेन थिंग। मुझे पता था कि बेस्ड ऑन माय स्टडीज आई विल गेट अ जॉब, तो मैंने वो कॉम्प्रोमाइज किया था। तो यस, आई यूज्ड टू डू 3 days अ वीक, एंड देन फोर्टनाइटली मेरा पे आता था, तो दैट वाज अराउंड 1800 to 2000. That was a good pay actually. So Very nice. monthly I was able to earn 3500 something. हाँ हाँ। मतलब जब भी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मंथली अराउंड इतना आता था। So I think that was more than enough to Pay all your survive. expenses. Yeah.
यस। सो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो अगर आप सिटी में रहते हो, प्रॉपर सिटी में, तो आपका जो मंथली रेंट होगा वो 1,000 to 1,200 जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो, मतलब 7-8 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में जाते हो, तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर रेंट विद इन $700 to $800। वाओ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आई थिंक दैट $200 यू कैन सेव एंड यू कैन स्पेंड दोज $200 इन ग्रोसरीज। सो मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस इट डिपेंडिंग ऑन आप कितना खाते हो। मेरा कम होता था क्योंकि मैं कम खाती थी, तो इट्स अराउंड आई एम नॉट श्योर बट आई डिडंट हाँ। कैलकुलेट, मे बी 300 to 400। हम्म। इट्स लाइक एक्सट्रीम। हाँ। So I think 200-300 like आपको चाहिए होता है, other than transportation. So I used to live in city, but my university was in Bandura, which was a suburb. I think it was 12 kilometer from the city. So I used Okay. to take bus. तो बस के लिए आपको एक कार्ड बनाना पड़ता है, तो मंथली पास बनता था अराउंड $300 समथिंग का। हम्म। तो अगर आपको रेगुलरली जाना है यूनिवर्सिटी तो पास बेनिफिट करता है। अगर आपको रेगुलर नहीं जाना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप फिर मंथली क्या बोलते हैं, पर डे या फिर तो वीकली आप टॉप अप कर सकते हो कार्ड को। और मेलबर्न में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो अगर हाँ। आप सिटी में, आप यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, डीके RMIT यूनिवर्सिटी हो गया, तो वो सिटी के अंदर आती है और सिटी में फ्री ट्रैम जोन है, तो आपको कुछ पे हाँ। करने की जरूरत नहीं। सो इट्स वाओ। लाइक 0 एक्सपेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो अमेजिंग। कुछ, हाँ, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आप वो सेव कर सकते हो मनी, डिपेंडिंग ऑन ये आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो। पर्सनल एक्सपेंस इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप पार्टी वार्टी करते हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइक पार्टी गर्ल, सो आई डोंट लाइक गोइंग टू क्लब्स एंड ऑल, बट आई लाइक टू एडवेंचर्स। तो मेरे को था कि मेरे को पढ़ना है, while I'm doing study I will also do some adventures, I mean like you know, अपने आप को थोड़ा सा बंजी जंपिंग की आपने? बंजी जंपिंग नहीं करी, बट ऐसा हाँ। बहुत सारे ट्री सर्फिंग, काइकिंग, ऐसे इंडोर स्काई डाइविंग, ये सब करा है। बट वो प्लान करके, ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते चले गए। अच्छा। कि सेव सम मनी, यू नो, आई ऑलवेज लाइक ट्राई टू सेव सम मनी फॉर दोज एक्टिविटीज। ओके। क्योंकि आप जब तक आप स्टूडेंट लाइफ हो ना, यू कैन एंजॉय। आफ्टर स्टूडेंट लाइफ इट्स सो डिफिकल्ट टू एंजॉय बिकॉज यू विल नॉट गेट लीव्स। तो स्टूडेंट लाइफ में आप, मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ो, मेन फोकस आपका स्टडी होना चाहिए, देन जॉब, एंड देन आपका खुद का मेंटल, मतलब आई मीन मेंटल स्टेबिलिटी के, यू हैव टू डू समथिंग, यू नो। आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड गोइंग टू क्लबिंग एंड ऑल। कभी कभी चलेगा, इट्स फाइन, बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी इन क्लब एंड दे आर स्ट्रगलिंग, यू नो। और क्लब की वजह से उनका नेक्स्ट डे भी खराब जाता है, दे यूज्ड टू स्किप यूनिवर्सिटीज, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आई विल जस्ट, जब तक स्टूडेंट हो अवॉइड करो, उसके बाद आपको जो करना है फुल टाइम लेने के बाद आप करो। तो आई थिंक अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं, मंथली एक्सपेंस व्हेन आई वाज स्टूडेंट, इट वाज अराउंड आई थिंक 1,000, एंड आई यूज्ड टू पे 750 रेंट per month because of COVID, and I used to live in the city, but now The rent that must have apartment gone up. yes, 1,400 और डबल हो गया रेंट उसी अच्छा। अपार्टमेंट का। Wow. So it was a 2 BHK, and just for one room I used to pay 750 something. Now it's 1,400 for that apartment. तो भी बहुत ही ऐसे इन्फ्लेशन तो हुआ है, डेफिनेटली बहुत रेट्स बढ़े हैं। तो अगर मैं अभी का करंट सिचुएशन को देखूं तो 2,000 तक आपका मंथली एक्सपेंस आपको लगेगा ही लगेगा। तो 2,000 एटलीस्ट होने तो चाहिए। 2000 एक बच्चा जो है वहां पे 20 आवर्स पर वीक में मैनेज कर लेता है 2000 के आसपास, या फिर उसको घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे? अगर उसको बेसिक नीड्स, वो कर सकता है 20 आवर्स, क्योंकि आपके पास फोर्टनाइटली 48 आवर्स होते हैं आई थिंक। हाँ। तो वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो अगर आप बोलोगे- मिनिमम वेज कितनी है वहां पर? मिनिमम वेज अगर आप TFN पे करते हो, मतलब टैक्स पे करते हो, TFN या ABN पे करते हो, तो आपको एटलीस्ट 22-21 तो मिलता ही है, $21, उससे कम नहीं मिलेगा। उससे कम अगर आप करते हो तो आप कैश इन हैंड कर सकते हो। आई वुड नॉट सजेस्ट कि कैश इन हैंड करो, बिकॉज उसमें रिस्क होता है काफी। इफ समथिंग विल हैपन टू योर बॉडी, तो आप कुछ कहीं पे भी क्लेम भी नहीं करवा सकते हो, आप वर्क से बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि जाओ एंड TFN पे काम करो या ABN पे काम करो। ABN इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, TFN इज टैक्स फाइल नंबर, सो उस पे काम करो, सो यू कैन एबल टू मैनेज, यू नो, यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो 21 इज बेसिक, बट लोडिंग वगैरह, कैजुअल लोडिंग, पार्ट टाइम लोडिंग एंड एवरीथिंग मिला के वो अराउंड 26-27 तक जाता ही है। चाहे वो रिटेल की शिफ्ट हो, क्लीनिंग में ज्यादा पे होता है।
बट अगर रिटेल में करना है या फिर तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी है, अगर और जॉब्स करनी है, अगर आप पार्ट टाइम हो तो आपको बेसिक 25 तो आपको आपके हाथ में आएगा पर आवर, उससे कम तो नहीं है। that should be more than enough to pay Yes. off your bills while you're a student. और स्टूडेंट के बाद क्या चेंज आता है जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, अभी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो कितना क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसके बाद? गाड़ी So, अपग्रेड होती है, महंगे हाँ, कपड़े आते हैं। I had a scooter when I was, like, क्या बोलते हैं इसको, स्कूटर ही बोलते हैं ना, जो जिसपे खड़े होके चलाते हैं। हाँ, So I had a इलेक्ट्रिक scooter स्कूटर, when I हाँ was a student, electric scooter. So I हाँ bought that scooter for $500. हाँ। वो मैंने किसी फ्रेंड से लिया था, तो मैं स्टूडेंट थी तो मैं वो लेके जाती थी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लेके जाती थी। जी। Once I got a job, I bought a new car. अरे वाह। तो खर्चे बढ़ गए, तो I bought a new car, I moved to new place. हाँ। So ऐसा था कि सैलरी बढ़ी, हाँ। तो खर्चे भी बढ़े साथ साथ में। हाँ। तो इट ऑल डिपेंड, फिर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, आप अच्छा। इन्वेस्टमेंट भी सेव भी करते हो, तो यस, हाँ। वो चेंज आता है। अच्छा, तो अभी Experience मैं बोलूंगी, अभी कितना खर्च होता है? अभी तो सैलरी आती है और चले जाती है, मैं तो यही बोलूंगी। लिटरली लाइक ये- ऐसा होता है कि सैलरी आती है एंड फर्स्ट वीक ऑफ मंथ इज लाइक ऑल डिडक्शन स्टार्ट्स, फोन बिल, ये बिल, वो बिल, बस ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ इट्स लाइक ऑल गॉन, just waiting for the next salary. So I think it's This same for in India as well. story of every full-time worker. Yes. तो इट्स सेम, कंप्लीटली सेम, क्योंकि इट डिपेंड, आप अवॉइड कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आते हो, अगर आप रीजनल में हो तो आपको गाड़ी आना जरूरी है। मैं तो बोलूंगी कि अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, लर्न ड्राइविंग, गेट योर लाइसेंस इन इंडिया एंड देन कन्वर्ट योर लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस टू ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको लर्नर्स लेना पड़ता है, फिर P1 एंड देन P2 एंड देन आपको आई थिंक 3 साल लग जाते हैं फुल लाइसेंस लेने में, 3 से 4 साल। तो बट कन्वर्जन इजी होता है, उसके लिए सीधा आप कन्वर्जन टेस्ट के लिए बैठ सकते हो शायद। यस, उसमें मतलब आपको देना पड़ता है ड्राइविंग टेस्ट, बट आपका डायरेक्टली ओवरसीज लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है फुल लाइसेंस में। ओके, तो परफेक्ट। हाँ, और कुछ अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, मतलब बेसिक जो अभी हाउस रेंट वगैरह है, तो मैं बोलूंगी कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जितना मैं स्टूडेंट लाइफ में देती थी, क्योंकि द मेन रीजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा आई थिंक, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी जो मेरा अभी अभी आई हैव लाइक आई एम लीजिंग 3 BHK हाउस, सो हम 3 लोग रहते हैं, सो डिवाइड करते हैं, सो माय होल हाउस रेंट इज $2,200. So divide by 3 people. So I think everyone get around 800 something. So which is a reasonable amount you are this paying. is like for your self use, if you're getting a full room or फिर kitchen सब पूरा घर आपके पास है, so I think it's pretty reasonable, 800 per month. Yes, so अभी मतलब लिविंग एक्सपेंस मैं बोलूंगी कि सिमिलर ही है, मतलब ग्रोसरी एक्सपेंस भी थोड़ा सा अगर बड़ा होगा मे बी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, रेंट सिमिलर है, एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा है बिकॉज गाड़ी आई है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस और बढ़ जाते हैं, पेट्रोल एंड देन रेजो, इंश्योरेंस एंड गाड़ी का EMI है, तो वो सब चला जाता है, बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिकॉज आई ऑलरेडी पेड फुल अमाउंट फॉर द गाड़ी, लाइक फॉर माय कार, सो बट स्टिल लाइक एक्स्ट्रा डिडक्शन तो जाता है, सर्विस चार्जेस आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर, सो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी जो आने वाले जो फ्यूचर में जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए एडवाइस क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अभी कैपिंग हो रही है, अभी आपने सुना है कैपिंग के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया कैपिंग कर रहा है कि सिर्फ इतने लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको वो बुलाएंगे, और आपकी आने वाले बच्चों के लिए क्या एडवाइस है कि उनको किन चीजों के लिए केयरफुल होना चाहिए या किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो उनके दिमाग में रहनी चाहिए बिफोर दे मेक द डिसीजन कि मैं नई कंट्री जा रहा हूँ, वहां पर क्या कल्चर होगा? इंडिया का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वहां का कल्चर डिफरेंट है, तो ऐसे कौन से ऐसे 2 4 5 पॉइंट जो आप बताना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए? ओके, लेट मी थिंक एक्चुअली। सो मैं बस इतना बोलूंगी कि जिनको एक्चुअली आकर यहाँ पर अच्छी जॉब्स करनी है, मतलब आपके पास स्किल होनी चाहिए, तो 1-2 स्किल्स आप इंडिया से सीख कर आओ। इफ अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपकी फाइल जेन्युइन है एंड यू आर श्योर इनफ कि आपको आपका वीजा लग जाएगा, सो स्किल वगैरह सीख कर आओ, डेफिनेटली कोई तो स्किल सीख कर आओ, बहुत सारी अलग अलग है एक्स्ट्रा, एंड बिकॉज इट इज इजी टू लर्न अ न्यू स्किल इन इंडिया, कॉस्ट इफेक्टिव होता है,
यहाँ पर आके उसके डबल ट्रिपल चार्जेस देने पड़ते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट। और आई थिंक अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे भी, तो सब यही बोलते हैं कि स्किल सीख कर आओ, कोई तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द लाइक हेयर सोसाइटी। तो आप उसको एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गुड इन ट्यूटरिंग, देन यू कैन स्टार्ट teaching student here as well, like part-time tutor. That is they pay really good amount. Like I think per hour they pay around $70-80. So I've heard like they pay around $120 as well per hour. So अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको आपकी लाइफ इजी करनी है, तो कोई तो स्किल आप सीख कर आओ डेफिनेटली। अदरवाइज तो आप यहाँ पे आके, क्योंकि इट्स नाउ डेज इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब हियर एज वेल। लाइक पार्ट टाइम जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो स्टूडेंट्स है बहुत बढ़ गया है, हर एक के पास जॉब है, एंड देन वन इज रेडी टू लीव देयर जॉब। सो जितना हो सके उतना लेते हैं। तो स्किल सीख कर आओ डेफिनेटली, एंड सोच के आओ कि यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बन के आना। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिकॉज इफ यू विल ब्रेक डाउन ना यहाँ पे, तो बहुत इश्यूज होते हैं। नो वन विल देयर फॉर यू, यू नो, सब बहुत बिजी होते हैं, कोई आपको नहीं देखेगा अगर आप बीमार पड़ जाते हो या आपका ब्रेकडाउन होता है। सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। और आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए आने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जाना है दूसरी कंट्री, यू डोंट हैव एनी गोल। इफ यू डोंट हैव एनी गोल, यू कैन नॉट सर्वाइव हियर, and trust me, you cannot survive here. So you must have a goal ki there should be one reason why you are going to a different country, and you have to fulfill that goal. क्योंकि अगर गोल होगा तभी आप मेहनत करोगे और आपका सर्वाइव इजी हो जाएगा। एंड उसके अलावा बेसिक चीजें जो है, जैसे मैंने बताया लाइसेंस वगैरह वहां से लेकर आओ, इजी रहेगा, क्योंकि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं यहाँ पर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा, इफ यू डोंट हैव, इनफैक्ट अगर आपके पास लर्नर्स भी है तो दे विल नॉट गिव यू द जॉब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फुल लाइसेंस होना जरूरी है। ऐसा तो लर्नर्स वो बोलते हैं कि नहीं, यू शुड हैव फुल लाइसेंस। तो जॉब्स अगर लाइसेंस होगा तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। उसके अलावा अगर और सजेशन है तो बस ये कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो पढ़ाई पे प्लीज फोकस करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, पार्ट टाइम में बस मत घुस जाना। आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस। आई नो मेनी पीपल हियर जो यहाँ पर आए हैं, पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब करी, मतलब 2-3 पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, दैट दे कम्प्लीटली यू नो डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज। दे गॉट देयर सप्लीमेंट्री, मतलब वो फेल हो गए 1-2 सब्जेक्ट्स में। एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, कि जितना उन्होंने अर्न करा वो उन्होंने एक्स्ट्रा फी में पे कर दिया। एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक आई थिंक $3,000 या $4,000 आई गेस पर सब्जेक्ट, ऐसा कुछ तो है। तो जितना उन्होंने अर्न करा, जितना सेव करा, वो सब कुछ उसमें देना पड़ा। ऊपर से उसके फिर अलग इश्यूज हो जाते हैं। आपका सब्जेक्ट रहता है तो फिर आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाता है, फिर आपको स्टूडेंट वीजा के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मांगना पड़ता है, आपको डेफर करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो यहाँ पर। फिर आप एजेंट्स के पास जाते हो कि क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा। तो बेस्ट थिंग है कि आप ऑन ट्रैक रहो, जिस चीज के लिए उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो। और अगर आपको नॉलेज है आप अपनी फील्ड में, यू विल गेट अ जॉब। बिकॉज मैंने यहाँ पे एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा है जिसके पास नॉलेज है और उसको जॉब नहीं लगी है। देर से लगी पर लगी पक्का है फुल टाइम। तो जो मेरे साथ के थे और जो मेरे से पहले भी थे या मेरे से बाद में भी हुए, दे गॉट अ जॉब, अगर वो राइट ट्रैक पे है तो। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी, ड्यूरिंग योर स्टूडेंट यू नो जर्नी, इफ यू फाइंड any internship in your field, do it. No, doesn't matter कि आपको अच्छा पे कर। Are you there, Jyoti? Can you hear me? I think yeah, I can hear you. I was about to message you कि वो stuck। Yeah. So we were at कि internship मिले तो हाँ। Internship। तो आई विल शेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल। सो जो मेरे बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट थे जो पार्ट टाइम कर रहे थे और जॉब्स कर रहे थे, और कुछ लोगों को इंटर्नशिप मिल गई थी, बट दे वर डूइंग unpaid internship, but they are managing to you know cover that 20 hours. तो वो इंटर्नशिप अपनी फील्ड में कर रहे थे एंड साइड में वो जॉब भी कर रहे थे। इट डिपेंड्स कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। इफ यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस, यू नो, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अगर 1 ईयर का आप क्लियर करके चलते हो कि आपको घर से आप मंगा सकते हो या थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो, तो फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज इट्स वर्थ जर्नी की। आप जब आप स्टूडेंट वीजा के बाद आप जब जाओगे तो आपको फुल टाइम जॉब लगेगी। तो इंटर्नशिप 2 बच्चे थे, एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और एक इंटर्नशिप कर रही थी। और जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रही थी, she didn't even graduated, right? But she got a full job before she graduated.
in the Wow. same company. यही So सबसे बड़ा स्ट्रगल है बच्चों का कि उनको फुल टाइम जॉब लेने में मुश्किल होती है, बट अगर आपको ऑलरेडी एम्प्लॉयर जानता है और आपने वहां पे काम किया है तो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट होना ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। हाँ, हम्म। तो वो चीज है, अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, फिर आप अर्निंग पे मत जाओ। परफेक्ट परफेक्ट। हम्म। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आपसे सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशन मिला। आपने यूपीएससी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चूज किया है और नाउ यू आर डूइंग सो वेल। आई सो प्राउड टू हियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो दनादन बढ़ती रहें, आपके अकाउंट पहले हफ्ते में खाली हो जाएं लेकिन वो मोस्टली सेविंग्स में जाए। I think it's same in India as well. Like everyone says that, and then when you start living that thing ना, like that journey, तो आपको पता चलता है कि हाँ, जो पापा बोलते थे, जो भाई बहन बोलते थे, that was true actually. कि सैलरी आती है और चला जाती है, पता नहीं चलता by the end of the month कि कहाँ है सैलरी। वही लोग सक्सीड भी करते हैं ना जो लोग सेव करते हैं, अदरवाइज लाइक यू सेड कि भाई पार्टी कर लो, ये कर लो कर लो, पैसे कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, और फिर जब एक्चुअली में जरूरत का टाइम आया तो फिर आपको मांगने पड़ रहे हैं पैसे। Yes, yes. और एक और बहुत चीज मैं बोलूंगी कि rather than doing parties, go and explore Australia. It is so beautiful. There is lot more things to see in Australia जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, मतलब कोई भी कंट्री, हाँ। जस्ट विजिट दो। क्योंकि अगर आप जाते हो जैसे डिफरेंट प्लेसेस पे, आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर फ्री, हम्म। सो यू डोंट हैव टू लाइक बहुत जो सारे पैसे ट्रैवलिंग खर्च। कॉस्ट है वही पे करते हैं, बाकी तो नेचुरल ब्यूटी इतनी है वहां पे, आपको मजा ही आ जाएगा। हाँ, बिकॉज यू नेवर नो वेदर यू विल गेट अ पीआर नॉट, क्योंकि हर साल रूल चेंज होता है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि आप गेस ही नहीं कर सकते हो कि कौन सा ऑक्यूपेशन है कौन सा नहीं है। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग फुल टाइम जॉब, अपना मेन फोकस होना चाहिए आपका पीआर वगैरह। अगर आपका मेन फोकस है, मतलब गोल है पीआर लेने का, साथ साथ में एंजॉय करो rather than just staying at home and not doing anything. So I would डेफिनेटली सजेस्ट कि एक्सप्लोर करो, क्योंकि जब एक्सप्लोर करते हो बहुत सारे लोगों से मिलते हो, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, एंड देन क्या पता आपको नेक्स्ट जॉब में हेल्प करे, इसलिए। Correct. On that note, I think we are running out of time. So thank you for Okay. joining in, and we Yeah, will thank you catch so up much. next time again. When I'll visit Australia, I'll come and see you. So Oh yes, yes, thank you. definitely. Just Yeah. yeah, thank you So, so much. I will just say one thing yeah. regarding the part-time job. I have one video on